मेरा सारा कंटेंट औरतों से पैसे के बारे में बात करता है इन द वे दैट अ वुमन एक्सपीरियंसेस इट डेली लाइफ। म्यूचुअल फंड की स्टार्टिंग पॉइंट विल नॉट बी कि ये एक ऐसा पूल है एटसेट्रा। इट विल स्टार्ट कि अगर तुम्हें दिल्ली से जयपुर जाना है और तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती तो तुम कैसे करोगे। Who is Neha and what she is doing today? Neha today is the founder of a company called as Womanista. It's a combination of woman, money and sisterhood. I had 7 women who came to my drawing room for my first class. There was one lady who actually came all the way from North Delhi or West Delhi to Gurgaon, metro लेके. For me that was the starting point. क्या वो 3 मेजर प्रॉब्लम्स थी जो आपके साथ किसी भी विमेन की सॉल्व हो रही थी? First 700 customers were purely by B2C courses, basic as goal setting, budgeting and investing in mutual funds. General middle class women who is doing a job, what should they look for to achieve in terms of wealth creation? अपने पैसे को ग्रो करना है जिसको एक्चुअली कहा जाता है वेल्थ क्रिएशन, उसके लिए थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। अगर 20-30% अपना सेफ एसेट्स में डाल रही हैं, उसमें से मैं उन्हें कहती हूँ 5 से 10% आप थोड़ा रिस्क लीजिए। तो इन्वेस्ट करो, सेविंग करो, इन्वेस्ट करो, एंड लाइक यार हम कहीं तो गलत जा रहे हैं, ये राइट इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी? सबसे पहले तो पिक अप अ नाइस बुक, गो टू YouTube वीडियोस। थर्ड which I am big fan of is कि I want to live to my fullest and at the same point I want to save also कि मैं फ्यूचर को भी सोच के करूँ। तो वो बैलेंस आउट कैसे होगा? पैसे के मामले में हमारे पास कोई इंसेंटिव ही नहीं। One, you have to write down some goals for yourself. Unfortunately, you have been born into a generation with so many choices. Right. We didn't have choices, तो हमारे सपने इतने छोटे थे। आपके पास कोई इंसेंटिव नहीं है, फिर तो नाइका सेल, पिंक लव, रेड ब्लू, क्या है, ब्लू वेंसडे, ब्लैक संडे। Scroll Instagram reels and I can get information quick. So you need basically a personalized financial advisor who's Right. available at the click of a button. But this was a great session. मतलब बिल्कुल अब आपने मुझे रोस्ट कर दिया, बिल्कुल Full roast कर दिया है। Full roast. नेहा जी, वेलकम ऑन द पॉडकास्ट। Thank you so much for having me. My pleasure totally. आप गुड़गांव से नोएडा तक आए तो हमें ये कन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग बनाने की तहे दिल से जिम्मेदारी दी गई है। बहुत ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी आपके पास। मैं 7 समुंदर पार आई हूँ for this conversation. Correct. Thank you so much for that. And to start with and to make an understanding about this podcast, I think I want to create a masterclass around your subject matter expert, as I told you earlier before the podcast. So, who is Neha, and what she is doing today? What problems are she solving? Who are the people you are interacting with in day-to-day life? And a little bit more about you so that we can get into the flow. So, Neha today is the founder of a company called as Womanista. बहुत ही टंग ट्विस्टर नाम है, लेकिन एक्चुअली बहुत ही सिंपल नाम है। If I break it down, it's a combination of woman, money, and sisterhood. So the STA at the end is sister. Oh, It's like sister. Okay. Right? So I started this in 2020. COVID baby है हम, because I'm personally from a personal finance background. मैंने वहीं MBA भी वेल्थ मैनेजमेंट में की है। मेरा अर्ली एक्सपीरियंस भी फाइनेंशियल इंडस्ट्री में ही रहा है। उसके बाद मैंने और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काम किया है, बट आई हैड अ पर्सनल इंटरेस्ट इन वर्किंग इन द स्पेस ऑफ मनी विद विमेन। Okay. हाँ, तो ये मैं बता रही हूँ 2005 की बात है, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। उस टाइम में तो कोई ऐसे ना विमेन की बात होती थी, तो विमेन एंड मनी तो वाज आउट ऑफ क्वेश्चन। बिल्कुल। तो वो एक सपना था, रह गया। Many years later, due to life situations and etc., I thought around COVID, I quit my job and I said कि एक कोशिश करनी चाहिए to connect with women who want to learn about money, talk about money, grow their wealth. And बहुत ही interesting था that मैंने पहला एक ऐसी एक क्लास, एक WhatsApp flyer बनाया, just circulated it with friends, family, just very simple experiment. And I had 7 women who came to my drawing room for my first class. उसमें से 6 were my friends. Okay. And there was one lady who actually came all the way from, I think, North Delhi or West Delhi to Gurgaon, metro लेके। उनकी बेटी भी थी, छोटी बेटी, अपने बच्चे को घर पे रख छोड़ के, she came for that session. She didn't know me. Okay. And for me that was the starting point. I felt कि अगर कोई एक बिल्कुल ही मुझे जाने बिना एक लेडी अपना टाइम निकाल के आ सकती हैं, paying a small fee to learn about money, I'm sure there are many such women. So Womanista stands for sisterhood
of financially smart women, because आज तक हमेशा लड़के ही जनरली एक दूसरे से इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, पैसा कहाँ डालेंगे, ग्रो कैसे करेंगे. एटलीस्ट हमारी जनरेशन में ऐसे ही होता था, एंड आई सी इट कंटिन्यूइंग. सो वी आर ट्राइंग टू चेंज दैट. I'll go into a bit स्टार्टअप मोड की. जब हम एक स्टार्टअप बनाते हैं, या तो प्रॉब्लम हमारी होती है या प्रॉब्लम हम आसपास देख रहे होते हैं उनकी होती है, राइट? एंड वी स्टार्ट डेवलपिंग अ मिनिमल वाइबल प्रोडक्ट सॉर्ट ऑफ थिंग. आपके लिए वो क्या था व्हेन यू वर योर फर्स्ट 100 women who you were interacting with, solving problems for? किस तरीके की प्रॉब्लम पर्सनल फाइनेंस में हम सॉल्व कर रहे थे? बिकॉज let's say I don't know anything about personal finance and all, and I am asking from that point of view. क्या वो 3 मेजर प्रॉब्लम्स थी जो आपके साथ किसी भी विमेन की सॉल्व स्टार्ट हो रही थी in the beginning, and आज क्या है वो? Okay, very important question you're asking, because startup बनाऊंगी ऐसा, I started something but it was not designed to be an official startup. As like I said, it came from a place where I identified some gaps. So शुरू में ही मैंने एक बेसिक सर्वे रन किया, जो एक नॉर्मल नया फाउंडर कोशिश करता है कि भाई क्या प्रॉब्लम्स है बताइए. और उस सर्वे में 3 चीजें जो निकल के आई, दैट वो फर्स्ट सबसे बड़ी चीज जो औरतों ने कहा कि हमें नॉलेज ही नहीं है, राइट? सो नॉलेज इज द प्रॉब्लम, कि फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है हमारे पास. दूसरी आई कि फाइनेंशियल कम्युनिटी नहीं है, एक ऐसा इकोसिस्टम जहां मैं एक औरत किसी और औरत से इस बारे में बात करूं कंफर्टेबली इन अ सेफ स्पेस, नॉट बीइंग जज्ड, वो चीज मेरे को लगता है नहीं है. और तीसरा, मेरे पास कोई ट्रस्टवर्दी एडवाइजर नहीं है. तो ये तीनों चीजें जब मैंने पढ़ी तो ऑब्वियस ही बात है, नॉलेज, एंड you also have to understand that as a startup founder in this space, what is the easiest way to get to your client? Correct. Fastest way is I have knowledge, I can give you knowledge, right? So at that time I was not even thinking scale, कितनी औरतें आएंगी, exactly वो जब knowledge कह रही हैं तो उनका क्या मतलब है. मैं तो अपनी जो knowledge है मैं आपको वो दे सकती हूँ. So वैसे करके हमने start किया. First 100 नहीं, first 700 customers were purely by B2C courses, and courses starting from as basic as goal setting, budgeting, and investing in mutual funds. हमारा एक कोर्स था म्यूचुअल फंड बूट कैम्प करके, वो आज भी हमारा सबसे पॉपुलर कोर्स है. सो मैं सिर्फ 3 कोर्स चलाती थी. मास्टर योर मनी, विच वाज अ लॉन्ग कोर्स विच हैड एवरीथिंग. जैसे अगर किसी को 0 से शुरू करना है, सारी चीजें कवर कर लेगा. एक होता था म्यूचुअल फंड बूट कैम्प, क्योंकि म्यूचुअल फंड में बहुत इंटरेस्ट था लोगों को, दे ऑलरेडी हैड सम SIPs एटसेट्रा. और तीसरा कोर्स व्हिच वी लॉन्च्ड वाज अ स्टॉक इन्वेस्टिंग कोर्स, बेसिक्स ऑफ लॉन्ग टर्म स्टॉक इन्वेस्टिंग, फंडामेंटल इन्वेस्टिंग, नॉट ट्रेडिंग बट फंडामेंटल. सो ये 3 कोर्स हमने जब शुरू में चलाए, वी एक्चुअली हैड ओवर 700 women who started buying these courses, and these used to be conducted live. Now they are all digital. Of course, we stopped live in 2022. But first, if you ask me, क्या प्रॉब्लम थी? नॉलेज को कैसे सॉल्व किया, जितना बेस्ट मतलब उस टाइम पे हमें समझ आता था उसको मॉड्यूल बना के हर क्लास में जो फीडबैक मिलता था उसको रिवाइज करके. हाँ. सो नेहा, फाइनेंस इज अ वेरी ट्रिकी सब्जेक्ट अगर समझ में ना आए तो. फॉर एग्जांपल अगर 6-7 साल पहले मैं अपनी बात करूं तो I didn't know about SIP, mutual funds, और I didn't know about long term investing as well. तो मुझे लगता था कि सेव करने का मतलब होता है बैंक अकाउंट में सेपरेट पैसे डालते रहो, या आपके पास अगर कैश है तो उसको सेव करते रहो. वही सेविंग्स होती हैं, वही इमरजेंसी फंड होता है, वही सब कुछ होता है. ज्यादा पैसे हैं तो थोड़ा गोल्ड में भी डाल देते हैं, और ज्यादा आगे तो प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं. इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है. करेक्ट. जब आप ये स्टार्ट कर रहे थे, जब आप ये इंटरेक्ट कर रहे थे लोगों से, तो समझाना डेफिनेटली थोड़ा ट्रिकी रहा होगा. वहां पे ऐसा भी मोमेंट आया होगा जहां पे पर्सन को लगा होगा यार ये ना कुछ गलत हो रहा है, ये तो नहीं है. हाउ डिड यू सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स? कैसी टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही थी? इंटरेस्टिंग बहुत. आई विल टेल यू प्रॉब्लम्स, एंड आल्सो आई कैन गिव यू अ पर्सपेक्टिव फ्रॉम माय टारगेट ऑडियंस. क्योंकि मैं अब कॉर्पोरेट्स में यू नो कंबाइंड सेशंस भी लेती हूँ, ऑल एम्प्लॉइज, मेन विमेन ऑल इन द सेम रूम. मैं विमेन ओनली के साथ तो काम करती हूँ, दैट इज माय मेन फोकस. तो कॉन्वर्सेशन जो है बहुत डिफरेंट है. सो आई विल टॉक टू यू अबाउट माय टारगेट ऑडियंस. उनको क्या अपील करता था या नहीं अपील करता था. मेरा सारा कंटेंट जो है वो
औरतों से पैसे के बारे में बात करता है in the way that a woman experiences it in daily life. For example, मेरी म्यूचुअल फंड की स्टार्टिंग पॉइंट विल नॉट बी कि ये एक ऐसा पूल है एटसेट्रा. इट विल स्टार्ट कि अगर तुम्हें दिल्ली से जयपुर जाना है और तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती तो तुम कैसे करोगे, राइट? या तुम्हें खाना पसंद है, अच्छा खाना खाना है, लेकिन तुम्हें कुकिंग नहीं आती तो क्या करोगे? सो द गुड न्यूज वाज व्हेन यू really took the concepts to very simple form, they lapped it up. उनको easy, वो मजा आने लगा. Bad news ये थी कि मैं क्योंकि बहुत ही बोरिंग और फंडामेंटल चीजें बता रही थी उस टाइम पे. क्रिप्टो वाज अ हाइप. क्रिप्टो के बारे में नहीं बताते आप, ट्रेडिंग के बारे में नहीं बताते. बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं उनको ट्रेडिंग करनी है. So we lost out. We still do. We lost out on a lot of people who didn't find it exciting and not on trend. That's also a thing about money, you know. It is driven by greed. So अगर आप on point नहीं हो, आप ऐसा कंटेंट नहीं बना रहे या आप क्रिप्टो करिए एटसेट्रा नहीं कर रहे, तो आप बोरिंग हो. आपके पास ज्यादा कस्टमर नहीं आएंगे, मासेस. बट हाँ, वो एक चीज मैंने नोटिस करी, कईयों को बोरिंग लगता था. बट सी, आई मीन फाइनेंस जैसे आप उसमें थोड़ा डीप जाएंगे, देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंट्रिकेसी ना. वो इतना बेसिक सब्जेक्ट नहीं है. अब उसको आप नहीं मानो तो फिर that I can't help it. But yeah, that was I think the challenge कि when you go little deeper तो थोड़ा सा heavy होने लगता है. It is not user friendly for everybody. That is why we launched our wealth advisory actually, because I realized a lot of women after a point they just said आप ही कर लो, you know, आप ही manage कर लीजिए, because इतनी expertise हम नहीं develop करना चाहते. And ये अलग-अलग categorize करने की जरूरत क्यों है? Before the podcast you were saying that there is someone जो kids के लिए कर रहा है, बच्चों के लिए कर रहा है. Then you are doing it for women. Then there are men as well. Why this categorization is important? And again, yeah, I'll tell you. I think categorization से ज़्यादा it's like an emerging niche in the market. And when you start noticing that niche, उनको relatability का गैप हो रहा है. उनसे कोई, जैसे कि बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बहुत सारी औरतों को घर में अगर वो 4 क्वेश्चन भी पूछ लेती है इन्वेस्टमेंट के बारे में तो बोला जाता है कि तुम रहने तो तुम्हें समझ नहीं आएगा. ठीक है, तो क्या होता है, वो रहने ही देती हैं. फिर वो पूछती ही नहीं है उसके बाद. अब वही औरत जब सीखने के बाद भी जाके बोलती है, मैंने तो कई बार हस्बैंड से भी बात की है, वो सही चीज बोल रही है लेकिन हस्बैंड जोर से गलत चीज बोले जा रहे हैं, तो वो भी घबरा जाती है कि आप ही बात करो क्योंकि हमें नहीं पता. सो दे रिक्वायर अ डिफरेंट स्पेस. यू नो क्या हुआ है बहुत सारे. एंड सेम बच्चों के साथ, मैं जब टीनेजर्स के साथ, अभी मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम किया था मेरी फैमिली के बहुत सारे टीनेज बच्चों के लिए, तो मैंने उनके लिए एक मिस्ट्री रूम बना दिया, उनके लिए एक गेम बना दी कि अभी पैसे के बारे में एक मिस्ट्री है, तुम ये मिस्ट्री सॉल्व करोगे और उनको प्रिंसिपल. सो प्रॉब्लम क्या है, यू हैव टू क्यूरेट द सेम आइडिया टू दैट ऑडियंस. एंड till now in this financial industry, because the largest amount of money is sitting with one gender, correct, nobody cares about the other. You know, they're not worth solving for. Right, you understand? So today a banker will never look at the lady in the room, he will keep looking at the guy, even if the lady makes the decision, because वो उनको वो sensitization है ही नहीं. So that is why it's important. That's why brands like ours come in, where we say, okay, no, we are listening to you and you are important and what you have to say is valuable. Correct. So whenever we start something new, there are some myths on the positive and negative, both sides, which came into picture. For example, if someone is starting content on YouTube, बहुत सारे myth है कि आपको मोनेटाइजेशन हो जाएगा, आप ब्रांड्स की लाइन लग जाएगी, ये आप इससे सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाओगे. यस, अगर आप मैं भी सीखना चाहती हूँ. So, मैं भी ऐसी सोचती थी. मिथ क्या है? नहीं, ऐसा नहीं होता है क्या? हाँ, मैं बताता हूँ. So, ये ऐसा कह के बेचा जा रहा है कि ऐसा होता है, बट उसका अगर मैथ्स कैलकुलेट करेंगे वो कितनी परसेंटेज में होता है, दैट इज सेम एज की क्रिकेटर बनने कितने लोग गए और कितने बने, म्यूजिशियन बनने कितने लोग गए और कितने बने, राइट? बट जो बन जाते वो तो ऐसे दिखा रहे जैसे. So again, मतलब what are you selling is also important. Are you cooking your meal by picking up emotions of people? Are you making them excited to start something and get fast results? As you said,
कि ट्रेडिंग में किक आ रही है क्योंकि जल्दी रिजल्ट दिखेगा, जल्दी प्रॉफिट, जल्दी लॉस। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में कुछ नहीं दिख रहा, धीरे धीरे चीजें ग्रो हो रही हैं, या आपको तो उसमें इन्वेस्ट करके भूल ही जाना है। करेक्ट, राइट? तो what were some of the myths when you were, मेरे साथ भी बहुत, जैसे कंटेंट में मैंने बताया, a lot of people come and ask for different kind of things and I say that boss, this is not possible. I'm giving you clear picture. So what were some of the myths those you faced and you busted them? You're talking in finance or in a startup? Both. You can tell me about both. No, finance के तो बहुत सारे ऐसे myths हैं जो लोगों को लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी को लेके बहुत इमोशनल हैं लोग। तो ये क्वेश्चन हमेशा मेरे पास आता है कि रेंट और बाय, या खासकर जब मैं औरतों से बात करती हूँ तो सपना होता है कि घर खरीदना है, करेक्ट, बट लिक्विडिटी वगैरह सब बिल्कुल उस चीज को सपोर्ट नहीं करती, राइट? तो उस टाइम पे उनको थोड़ा ये नंबर भी दिखाना पड़ता है, भाई रियल एस्टेट का डेटा भी आप देखो, ऐसा नहीं है। रियल एस्टेट में क्या है ना, वो इट वर्क्स इन साइकिल्स, राइट? सो जब बूम करता है तो फिर बहुत मजा आता है, लेकिन फिर सालों साल प्लेटो करेगा या डाउन जाएगा। मतलब ऐसा इंसान जिसने पीक पे खरीद लिया, शायद वो अपना घर बेचने के लिए वेट ही करता रह जाएगा ऑलमोस्ट 7-8 साल। बिल्कुल। दूसरी प्रॉब्लम रियल एस्टेट में अनरेगुलेटेड बहुत है, राइट? कि पैसा फंस गया अगर गलत डेवलपर के साथ तो फंस ही गया, आपकी शायद लाइफ की सेविंग चली गई। अब वो चीजें, लेकिन उनको बताना एक तो अनकंफर्टेबल बहुत है सुनने वाले के लिए, मेरे लिए तो इजी है, और फिर मानना उनका, और फिर डायरेक्शन चेंज करना। ये छोटी छोटी आई एम गिविंग यू। फाइनेंस में काफी ऐसे मिथ्स हम डेली मिलके बस्ट करते हैं। औरतों में एक बड़ी मिथ है कि भाई नौकरी जब मिल गई, पैसा कमाना शुरू कर दिया, आई बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। अच्छा, तो ये लगता है उनको कि इंडिपेंडेंस जो है वो सिर्फ पैसा कमाना है। तो मैं उनको ये समझा के थक गई हूँ कि ये जो था ये मेरी जनरेशन में था, 40s में जो है या 50s में है, उनके पुरानी जनरेशन इतना काम नहीं करती थी। हमारी जनरेशन ने काम करना स्टार्ट किया तो पैसा कमाना वाज इंडिपेंडेंस, क्योंकि वही हमारे को पता था। बट अब अगली जनरेशन के लिए थोड़ी सा डिफॉल्ट सेटिंग, राइट? पैसा तो कमाओगे, बिल्कुल। वेल्थ क्रिएशन इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। अपने नाम पे कितने एसेट्स आपने होल्ड किए हुए हैं, ये है जिसके बारे में आपको बात करनी चाहिए। ये नहीं कि आपने आज कमा लिया, उड़ा दिया। एंड एक वर्ड है औरतों में, पॉकेट मनी। पता नहीं उन्हें लगता है आज भी कि वो जो कमाती वो एक पॉकेट मनी है। सो वो उसको इतनी रिस्पेक्ट भी नहीं देती कि उस पैसे को वो इन्वेस्ट करें, ग्रो करें और अपने नाम पे, बिल्कुल, राइट? सो ये सब चीजें हमारी बहुत, अब मिथ बोलिए या मेरी जर्नी में बहुत रेगुलरली आई कम अक्रॉस दीज काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस। बट ऑन अ बिजनेस साइड, one of the things which I have also learned is that we are trying to shift a mindset. Yes. We are not teaching about money. We are not giving only the maths कि 5,000 की SIP कर लो, 20 साल बाद इतना हो जाएगा, 1 करोड़ बन जाएगा। वो एक्साइटिंग लगता है, लेकिन फिर भी लोग वो 5,000 करते नहीं है। बिल्कुल। और वो जो माइंडसेट है ना, वो सबसे बड़ा, आई थिंक, जो आपने कहा कि मुझे लगा था जो चीज फास्टर हो सकती है, लेकिन आज भी आई फील बहुत काम है। सो आई फील द अदर साइड, वैसे नेगेटिव वाली साइड की, जो मैं ऑप्टिमिज्म से मैंने शुरू किया था। आई थिंक अपना काम करते करते यू लर्न कि माइंडसेट चेंज टेक्स, इट्स अ लाइफ लॉन्ग वर्क। Correct. It's not 3 years, 5 years. Correct. It's a kind of very long journey. Yeah, it's an so evolution. that is my learning as a startup, that you have to learn to hustle and keep pushing even when there is no motivation. बिल्कुल सही बात है, and being a founder I can totally relate to that. है ना? Yeah. So you talked about wealth creation for a women, कि wealth creation का मतलब बिल्कुल ही अलग है। बिल्कुल सिंपल भाषा में, if you can explain me, for a general middle class woman who is doing a job, also raising her kids with her husband, what should they look for to achieve in terms of wealth creation? Bilkul practical. Good, very good question. So I think savings, they do well, right? So if I'm regularly running a house, I'm a working woman, working mother, I have a certain cash flow coming as part of my salary. तो 20 to 30% को मैंने सेव कर लिया, लेट्स से एफडी बना दी या बैंक में रख दिया। थोड़ा सा अगर मन किया तो गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट कर दिया। ये चीजें जो सारी औरतें ज्यादातर करके रखती हैं। लेकिन डूइंग समथिंग, व्हेन आई से वेल्थ क्रिएशन, आई मीन
creating investments either through equity, be mutual funds या stocks या PMS या real estate, ये दो ही है wealth creation assets इन्हें कहा जाता है. बाकी दो जो मैंने कहा, FD, आजकल गोल्ड तो बिल्कुल ही most wealth creation asset बन चुका है currently, but in the ecosystem of financial planning, gold is considered as a hedge. वो आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्टेड रखता है. सो वेल्थ प्रोटेक्शन जो है वो है ये सेफ इंस्ट्रूमेंट जैसे FD हो गए, गोल्ड हो गए. इनका काम है आपके पैसे को प्रोटेक्ट करके रखना, सेफ रखना. बट एट द सेम टाइम हमें अगर अपने पैसे को ग्रो करना है, जिसको एक्चुअली कहा जाता है वेल्थ क्रिएशन, जो आप एक्स्ट्रा पैसे को अपना जो कंपाउंडिंग जिसे हम कहते हैं, उसके लिए थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, राइट. सो एक लेडी जो अगर 20-30% अपना सेफ एसेट्स में डाल रही हैं, उसमें से मैं उन्हें कहती हूँ 5 से 10% आप थोड़ा रिस्क लीजिए, थोड़ा सा रिस्क लीजिए, ताकि आप एक SIP ही स्टार्ट करिए जो आपके अकाउंट में आपके नाम पे है, राइट. सो मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ. अगर हस्बैंड वाइफ में दोनों की सैलरी बढ़ गई, लेट्स से दोनों का एक लेवल था अर्निंग का और उनकी सैलरी बढ़ गई, तो सैलरी बढ़ते ही क्या होता है कि लाइफस्टाइल की चॉइसेस भी बढ़ जाती है. बिल्कुल, है ना, नई गाड़ी खरीदनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो क्या होता है कि जो फैमिली की लाइफस्टाइल एक्सपेंस बढ़नी है, वुमन इज हैप्पी टू स्टेप अप एंड से मेरी जो एक्स्ट्रा इनकम है मैं इससे कंट्रीब्यूट कर दूंगी लाइफस्टाइल का खर्चा. मेरे बच्चों को अगर एवोकाडो खाना है तो वो मैं डालूंगी, ठीक है, तुम जो है वो घर के पैसे या घर की EMI तुम भरो. बहुत सिंपल सी चीज है. तो मैं उन्हें कहती हूँ कि आप दोनों की सैलरी बढ़ी तो डिवाइड करिए अपना लाइफस्टाइल एक्सपेंस और डिवाइड करिए अपनी वेल्थ क्रिएशन. क्यों नहीं करते? व्हाई इट इज यू टेक केयर ऑफ लाइफस्टाइल, तुम घर चला लेना, तुम वेल्थ क्रिएट कर लेना. क्यों? दोनों ही कर सकते हैं ना. बिल्कुल. बट ये आता ही नहीं, ये स्ट्राइक ही नहीं करता. और किसको स्ट्राइक नहीं करता? औरतों को स्ट्राइक नहीं करता है. बिल्कुल. I don't think it's the men who hold them back, by the way. I have seen men are great allies. They come to me, हमारी वाइफ को सिखा दो, हमारी वाइफ. Women don't. So this wealth creation which you're asking, this is what it is. It's a mindset that ये पैसा मेरे नाम पे नहीं, हस्बैंड ने घर खरीद लिया, मेरे नाम पे खरीद लिया. करेक्ट. उनकी गेम पूरी अलग ही, मतलब वहीं पे है. Why not buy my own? आप भी तो कमा रहे हो, आप भी तो इन्वेस्ट कर सकते हो, आप भी ले सकते हो. आप एक 1 करोड़ का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना लो. अगर आपको रियल एस्टेट नहीं जचता, नहीं समझ आता, आप वो कर लीजिए. बिल्कुल. बट कुछ तो करिए अपने नाम पे. अच्छा, my mother, I'm just curious, and the beauty of the podcast is we can speak about anything and everything. My mother and her friend circle, मेरी mother एक teacher थी और उनके friends भी बहुत सारे teachers थे. So what they used to do कि they used to save 1,000 rupees each as a committee, kitty, society. कुछ ऐसा. And then 12 महीने में एक बार किसी एक की लॉटरी लगती थी. किटी. हाँ, किटी. तो बहुत वो मजा आता था देखने में, सुनने में. मम्मी कहती थी यार इस बार मेरी है. बिल्कुल. आज अगर हम वो फाइनेंस वाले मैटर में देखें, should women do it? और बिल्कुल. तो मैं तो सारी अपनी म्यूचुअल फंड क्लासेस में कहती हूँ कि औरतें तो ओरिजिनल म्यूचुअल फंड है. बिफोर फंड हाउसेस स्टार्टेड हम म्यूचुअल फंड करते थे, क्योंकि म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअली जिसके पास जितना सेविंग, वो एक पूल बनाएंगे, वो पैसा जोड़ेगा. सिर्फ एक ही डिफरेंस है, औरतें वो पैसा जोड़ती हैं और जिसको जब नीड होती है या जिसकी चिट आ जाती है, जो भी वो कर लेती है. बट अब आजकल वो एक पार्टी बन गई है बेसिकली. पैसा का तो आइडिया सेकेंडरी हो गया, पार्टी का आइडिया पूरा हो गया. लेकिन वही किटी अगर आप एक फंड मैनेजर को दे दीजिए, एक इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट को दीजिए, और मैं बोली कि अब इसको ग्रो कर, 1 साल बाद मुझे ये 10,000 रुपए का तू 12,000 करके दे. यही तो है म्यूचुअल फंड, और क्या है? बट हम ट्रेडिशनल, इवन टुडे बाय द वे अक्रॉस इंडिया इन रूरल सोसाइटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आज भी ये चीज करती हैं इन अ वेरी सक्सेसफुल वे, वेयर दे पूल देयर मनी, दे हेल्प ईच अदर टू सेट अप देयर बिजनेसेस, या किसी के बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की जरूरत है तो वो करती हैं. बिकॉज आई विल टेल यू व्हाई दिस वर्क्स विद वुमेन, बिकॉज दे आर हाईली लॉयल. बिल्कुल. किसी को ये टेंशन नहीं है कि यार इसको दे देंगे तो ये लेके भाग जाएगी. इट्स अ वेरी वी आर, एंड यू सी इवन लोन्स में अगर आप देखिए डेटा, व्हाई विमेन कस्टमर्स आर प्रेफर्ड. अगर जो लेंडिंग में देखे डेटा, रीपेमेंट इज हायर व्हेन विमेन टेक लोन्स. बट बैड न्यूज इज दैट
जैसे हनुमान जी के मैं एग्जांपल देती हूँ कि वही अपनी ताकत भूल जाते थे ना, उनको याद दिलाना पड़ता है। वैसे ही है कि इतने सारे सिस्टम्स हम ही लोग करते हैं। जैसे somebody asked me कि SIP, तो मैंने कहा अगर आप सोचें हमारा पूरा ट्रेडिशनल कैलेंडर देखें तो बाय डिफॉल्ट women are doing gold SIP through the year. कभी अक्षय तृतीया आता है, कभी धनतेरस आ जाता है, कभी कोई ओकेजन आ जाता है, और राइट पूरा हमारी जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है, हर छोटी छोटी ओकेजन में क्या करती हैं औरतें, जाके गोल्ड खरीद लेती हैं। तो ये गोल्ड SIP तो है, हम कर रहे हैं वो चीज। लेकिन अब क्योंकि कोई फैंसी टर्म में कोई जैकेट पहन के आदमी हमें बोलता है तो हमें लगता है पता नहीं, इट मस्ट बी वेरी इंटेलिजेंट, बिकॉज मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो आपकी जो मदर कर रही है, मेरी मदर करती आई हैं, this is all traditional knowledge which we just need to modify it. Correct. And take it to the, मतलब होता है ना, पुरानी चीज को आज की रेलेवेंस उसको देना, आज के टाइम की। बिल्कुल, बस बिल्कुल। And Neha, you are also a women founder, and founders, startup owners, इनके लिए भी पर्सनल फाइनेंस एक काफी टैबू सब्जेक्ट बन जाता है कई बार, बिकॉज ये स्टार्टअप में तो पूरी जान लगा देते हैं, बट अपने पर्सनल फाइनेंस बहुत ही हिले हुए रहते हैं। For any women entrepreneur, what would you suggest how to think about personal finance? And to make it easy, how do you think about your personal finance and how you keep it separated from your business? ये बहुत आपने ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि इस चीज का तो स्ट्रगल मैंने भी पर्सनली किया है। फॉर समवन हु इज इन दिस स्पेस, यू नो, व्हेन आई स्टार्टेड, मैंने कॉर्पस अलग कर दिया था कि ये मेरी डॉटर का एजुकेशन फंड है। I am a very goal-based planner kind of person in my own life also. So I had proper funds, and my core priority at that time, before I started or took this risk, is कि my daughter's education, whatever I want to contribute has to be secure. ठीक है। बाकी रिटायरमेंट भी कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूँ, और कुछ अगर गोल है वो भी कर सकती हूँ, लेकिन वो नहीं कर सकती। So मैंने वो अलग कर दिया। लेकिन having said that, it took me a year and a half to actually separate my personal and business finances. So the first thing which I always request, even I struggled with it, but it is having two separate apps. The more separate your entities are, I feel like when I made my LLP, now I have a private limited, it's become much easier because entity अलग हो गई है ना। So बैंक अकाउंट अलग हो गए हैं, हर चीज का यूसेज सेपरेट हो गया है। एंड द ओनली प्रिंसिपल आई स्टिल फॉलो नाउ इज पर्सनली अपने लिए, कि एक संडे महीने का मैं अपने पर्सनल फाइनेंस को डेडिकेट करती हूँ, जो पहले मैं बहुत ज्यादा रेगुलरली करती थी, हर वीकेंड कर देती थी। अब टाइम कम मिलता है, बट महीने का एक संडे जो मेरी एक शीट है, मेरी नेटवर्थ शीट, कैश फ्लो शीट, गोल, मतलब आई एम अ नर्ड लाइक दैट। बट आई जस्ट फील all startup founders, especially women, you know, just putting that one day of the month to analyze what is coming in, what is going out, your own assets, that can be a great start. And those who are not doing this, what are the red flags which they'll see in the coming time? Salary नहीं लेना, कभी भी erratically ले लेना, जब जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, कैश फ्लो का कोई अंदाजा नहीं है, बिजनेस में क्या है, पर्सनल लाइफ में क्या है, SIP कभी सेट नहीं करते, क्योंकि यही होता है कि पता नहीं है रेगुलरली पैसा आएगा कि नहीं आएगा। सबसे बेसिक रेड फ्लैग है ये एक्चुअली। ये पर्सनली आई एम सेइंग, आई एम टेलिंग यू, आई स्ट्रगल विद दिस। I took 1 year to do this, and I needed another friend of mine who is also, you know, a founding team member. She was my money buddy, where she told me, नहीं नहीं, you cannot stop your SIP. तो उसकी वजह से मैंने वापस ये सिस्टम क्रिएट किया। So I'm saying even I fell into this rabbit hole, which I am sharing about. And the point is that, you know, however much we know theory, practical में क्या होता है कि हम इतने, जब हम अपने कुछ बना रहे हैं, like you said, इतना engross हो जाते हैं कि हमें अपनी पर्सनल स्पेस बिल्कुल we lose track. बिल्कुल। So to bring back that in track, अगर आप पहले से कुछ चीजों को प्रायोरिटाइज कर लीजिए, और संडे अपना महीने का एक will be, I think, very helpful. At least it helped me personally. Correct. And Neha, those people who are connected with you today, when you chat with them, when you work with them, what are, I would say, top 2-3 things which they say कि यार काश ये मुझे पहले पता होता तो मैं इस तरीके से करती, इस तरीके से करता? 2-3 चीजें जो काफी कॉमनली मैं सुनती हूँ, और एक है द आइडिया दैट यू कैन स्टार्ट स्मॉल।
Yes. आई थिंक वो आइडिया अब काफी कॉमन हो गया है, बट बहुत सारे लोग हमारी जनरेशन में, उनके ये मिथ था कि जब तक बहुत सारा नहीं पैसा होता है तो अपने को इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारा चाहिए बिल्कुल। या कर बिकॉज आई थिंक अगेन व्हाट आई फील इज उसका बैक स्टोरी ये है कि हमारी जनरेशन के पेरेंट, हमने अपने पेरेंट्स को ज्यादातर रियल एस्टेट टाइप के एसेट्स में ही इन्वेस्ट करते हुए देखा और वहां पे बहुत पैसा ही लगता था। स्टॉक्स या ये 100-200 रुपए वाली चीजें होती नहीं थी, और इसकी एजुकेशन भी बहुत कम थी, और एजुकेशन तो थी ही नहीं, और थी नहीं उनके हमारे पेरेंट्स के टाइम में थी नहीं। या तो वो होता था आप अपना पोस्ट ऑफिस या कुछ कर रहे हैं, या फिर आप मकान या लैंड खरीद रहे हैं। तो जब तक हमारा टाइम आया ये सब बना, हमें नॉलेज नहीं थी। सो पहली चीज तो वो मैंने बहुत नोटिस करी है, बहुत लोग कहते हैं कि यार अच्छा इतने छोटे अमाउंट से भी कर करके, और उससे क्या होता है ना, छोटे से स्टार्ट करके आई नोटिस की हैबिट बन जाती है और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। वो कहने लगते हैं कि अब हम खर्चा करने की जगह वो 5,000 बचाते वहीं डाल देते हैं। बिल्कुल। एक कॉन्फिडेंस और हाँ, मजा आने लगता है, किक आती है। जो पहले आपको वो लगता था कि है बाद में कर लेंगे, अब आपको मन करता है मैं यही कर लूं, राइट। तो वो एक चीज मैंने देखी। और दूसरी, गलत प्रोडक्ट्स में लोगों ने काफी इन्वेस्ट किया, क्योंकि यंग एज में पेरेंट्स की भी नॉलेज लिमिटेड थी, या रिश्तेदारों में कोई ना कोई LIC का एक एजेंट तो हमेशा ही दरवाजे के पीछे छुपा ही होता है, सोन पापड़ी का डब्बा लेके। हाँ बिल्कुल। तो वो बहुत लोग मुझे अभी भी कहते हैं कि यार हम, क्योंकि हम अपना जब प्लानिंग करते हैं तो हम एक इंश्योरेंस का उनका एक पूरी सेपरेट एनालिसिस करते हैं कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी आपका क्या रिटर्न दे रही है। बिल्कुल। तो जब वो देखते हैं उनको बहुत खून जल सा जाता है उनका कि हाय ये हमने क्यों कर लिया। हाँ, तो वो एक चीज मैं देखती हूँ काफी। You are doing a business today. What makes you most happy as an entrepreneur? What are some of the things जिनको देख के आपको लगता है यार देखा, इसीलिए मैं अभी तक लगी हुई हूँ, या इसीलिए मैं ये काम कर रही हूँ? Honestly, I feel बहुत दिन होते हैं जब मुझे लगता है कि बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। कोई मेरी बात नहीं सुनता। किसी औरत को कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं। वो वापस जा रहे हैं, अपना जो उनकी लाइफ चल रही थी वो खुश है। बट फिर एक ऐसे कोई मैसेज आएगा, जैसे अभी मोस्ट रिसेंट इज वन ऑफ माय clients, she was going through a tough time, and she came in for a discussion about her portfolio, but she ended up talking to me about other things which were happening, which were obviously had an impact on her finances. But she shared all that, and I told her ki don't worry, XYZ will be taken care of, whatever your future, उसके एक गोल था जिसको लेकर थोड़ी सी घबरा रहे थे, मैंने कहा ये सब प्लान हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, ये हो गया। एंड देन न्यू ईयर्स पे उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि यू आर द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी दिस ईयर। तो यार ऐसी ऐसी चीजें हैं, डोमेस्टिक वायलेंस से निकली हुई औरतें जिनको, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पुअर लेडीज, आई एम टॉकिंग अबाउट अर्बन वुमेन, nobody supported, family नहीं दे रहे सपोर्ट, कुछ नहीं कर रहे, उनके फाइनेंसेस ऑर्गेनाइज करना, क्या क्या रिसोर्सेज हैं, पहली बार उनको नेट बैंकिंग में लॉग इन करवाना, उनका पोर्टफोलियो बनवाना, फिर वो, और आज फिर वो जब मिलते हैं मुझे और फिर और औरतों को बताते हैं कि तुम इनसे बात करो, दे विल हेल्प यू। So I feel numbers are very small in terms of the work that I do. तो चलते रहते हैं यार ऐसे, कुछ अच्छा बोल देते हैं कई लोग, तो दिल खुश हो जाता है। एंड जब काम करते हैं तो एक लूप लग जाता है, काम कर रहे हैं, घर जा रहे हैं, फिर काम कर रहे हैं। What helps you to disconnect and recharge yourself? What does? Yeah, what do you do to recharge? Do I really disconnect? No, I do actually now. It was a struggle initially, but last 1 year consciously, one or two good habits I've had is to spend some more time with my daughter. I think evenings with her, something I try to make sure my ending time is set for work, and then having some chit chat, chill time with her, even though it could be study time, teaching, forcing her to do maths is one thing. And I have a good social, like, friend circle, so making sure that I catch up with friends. So, and taking care of my health. I think these three things I've kind of
Yeah, nothing very honestly nothing very fancy or Correct. creative. बिल्कुल. Bandwidth ही नहीं है मेरे अंदर अभी और कुछ करने की, but हाँ ये 2-3 चीजें I do. I've made my cut off time very clear कि इसके आगे नहीं करेंगे, and Sundays are free. Okay. पहले I used to work on Sundays also. Now 2 साल से Sundays को काम नहीं करती हूँ मैं. And Neha, today as we speak, content digital media में around everything, anything and everything is popping up. Instagram, YouTube, LinkedIn. It is very hard to find out whom to trust, whom to not, whom to follow, whom not to follow. How are you thinking about digital content for yourself? And कोई भी अगर सीखना चाह रहा है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, let's say personal finance के बारे में, how to vet whether the person is right to follow, good with credibility and all, because जिसको अवेयरनेस है वो उसकी बहुत सारी बैकग्राउंड रिसर्च और ये सब कर सकता है, बट let's say जिसको अवेयरनेस नहीं है, how should they deal with it? The simplest in financial landscape, the simplest check is SEBI registration. Every person now on social media who is giving any sort of financial advice is supposed to specify that they are SEBI registered or not. It's a very basic check, and it actually we are lucky it's an industry which is highly regulated. It's not like मैं उठ के किसी भी टॉपिक में मतलब बोल लूं जिसका कोई रेगुलेटर ही नहीं है, है ना? हम तो बहुत ही रेगुलेटेड इंडस्ट्री में, मतलब हमारे डिस्क्लेमर भी रेगुलेटेड है कि हमें क्या बोलना है, क्या लिखना है. तो कस्टमर के लिए तो इजी बना रखा है. अगर आप सिर्फ यही देखिए सेबी रजिस्टर्ड है, जो भी जिसकी भी आप बात सुन रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट वो है. उसके बाद उनकी वेबसाइट होनी चाहिए, उनके पास अगर कोई कस्टमर्स है उनका कुछ अगर आप कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब दिस इज अगर आपको एडवाइस डिटेल में एडवाइजरी लेनी है, उसके लिए आप रेफरल्स ले सकते हैं, कस्टमर से कनेक्ट कर सकते हैं. बट बेसिक कंटेंट सुनने के पहले दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट आई फील. एंड आई नोटिस लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट registered also, they are sharing, but they are sharing, I feel, if they are sharing the personal experience तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन आप एडवाइस दे रहे हैं अगर किसी चीज की, तब थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए. जैसे मैंने अगर पर्सनली सपोजिंग एक नो स्पेंड वीक करी और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उसके लिए मुझे एडवाइजर होने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ कि भाई आप सिल्वर में पैसा डालिए या ये एक नेक्स्ट बिग थिंग है, तो उस केस में तो सेबी रजिस्ट्रेशन जरूर चेक करनी चाहिए. बहुत सिंपल है और लिखा होता है बायो में. And for yourself, how are you thinking about digital content? What are you doing? So for me, you know, we started with our Instagram was the first, because short form content is what I so again, before venturing into 2-3 platforms, I was just checking some data demographically, and Instagram seemed at the time to be having a larger percentage of women, still more men, right? Percentage, if you see data wise, it's more men versus women, but उसमें versus YouTube, उस टाइम पे इंस्टाग्राम में ज्यादा विमेन थी. सबसे ज्यादा विमेन उल्टा है अगेंस्ट मैन इज इन पिंटरेस्ट, जहां हम अभी तक प्रेजेंट नहीं है. होना चाहिए हमें वहां, विच इज अ मिस. बट अदरवाइज मास पॉपुलर में इंस्टाग्राम इसलिए स्टार्ट किया. इजी भी था थोड़ा एग्जीक्यूट करने के लिए. यूट्यूब टेक्स लिटिल बिट लॉन्गर इन टर्म्स ऑफ just the aesthetic which you were discussing, less than content but aesthetic, etc. But we did start YouTube because I realized that what was happening was Instagram format, ek to that algo is very irritating, it keeps changing, like it's super irritating. And secondly, the format of the knowledge that we give, if I want to talk about a subject in depth, then I don't think Instagram is actually the right platform. It's more sensationalized, right? And it doesn't match with my own style, I feel. Right. I like to talk in detail. तो इसीलिए we started YouTube कि कई टॉपिक्स में भाई थोड़ी width चाहिए, थोड़ी depth चाहिए, तो YouTube भी हमने फिर थोड़ा effort किया है अभी last year से. But how I'm thinking about it is I feel you cannot avoid being on these platforms. And it's the best way to reach newer audiences and talk to them if you really think it will help somebody. This is the only format. You cannot avoid it. And I'm in a business of money. So I even have tried formats where मुझे शक्ल मेरा हटा दो. But most of my advisors, marketing advisors say that takes away the trust factor if you are not going to talk. Correct. But that's the advice I have got. So you can tell me if that's correct or not. Definitely. And
talking about Instagram and YouTube, I think आपने एकदम सही बोला that Instagram is more sensational and all, and YouTube is about educating people long form. I think a lot of people in general chase viewership, more and more viewership on YouTube rather than a community building exercise. So I have seen people जिनके YouTube में let's say 5,000 सब्सक्राइबर ही हैं और 1,000 व्यू ही आते हैं हर वीडियो में, लेकिन वो 1,000 एकदम वही नीश के लोग हैं जो उनको देखने चाहिए, right? So right people with right mindset, and it's a great filter as well if utilized in the right fashion. I agree. उनका उधर से ब्रांड अवेयरनेस भी हो रहा है, उनका उधर से बिजनेस कन्वर्जन भी हो रहा है. अल्टीमेटली व्हाई अ ब्रांड इज ऑन YouTube or on Instagram? To aware people about their business, and then convert few of them into a community or a program, right? So I think YouTube may this for anyone who is doing some serious thing. Personal finance हो गया, education, as I was an educator, I was teaching engineering students, informational content हो गया, geopolitical content which has a lot of depth. I think they should chase for people who are specifically interested about, and then go in depth and depth and depth and depth. Yeah, that is the way to create consistent and long-term audience. I agree. I think that's the lesson which I also got in a bit late, and I have to admit that YouTube takes a lot of time. Yes, it takes a lot of time. I have newfound respect for YouTube creators because काफी time लगता है to do the whole video, and then मतलब वो लगता है कि हाँ भाई 5 मिनट का वीडियो है, लेकिन उसके पीछे काफी मेहनत जाती है. So I have newfound respect कि हाँ यार इसमें बात है. But interesting, you talked about community. So for in our case, we already have a WhatsApp community. So I think we went a little ulta because customer आ गया. Instagram में ads use करते थे उस टाइम पे, तो customer base बना learners के साथ continuity कैसे रखो, hello नेहा, हाय नेहा, ये बता दो वो बता दो, हो रहा था बहुत ज्यादा. तो मैं said यार एक group बना देते हैं. तो ग्रुप बना दिया तो 1,000 औरतों का भी कम्युनिटी बन गया है. तो अभी वहां पे एक रेगुलर कॉन्वर्सेशन चलता रहता है हमारा. तो अब हम बाकी सारे फनल्स को यूज करते हैं, लेकिन हमारा मेन जो है रेस्टिंग, वो हब हमारा मेन हब है. Are people discussing problems within themselves as well? Yes. I think that's the real. We are encouraging them to do that. It's not very high percentage of women who discuss, but we are अब उसमें भी क्या है ना, जैसे मैंने कहा क्यूरेशन है. अब सैटरडेज को हमने एक लाइफस्टाइल सेगमेंट स्टार्ट किया है, जहाँ अभी हमने बात करी अबाउट रिलेशनशिप्स एंड मनी. बहुत कॉन्वर्सेशन हुआ दिल खुल के. फिर हमने लास्ट ईयर अराउंड वेडिंग टाइम हमने बात किया था कि अबाउट ब्राइडल लहंगास, कि कहाँ है तुम्हारा लहंगा. मतलब क्या, क्योंकि नई जो ब्राइड्स यंग थी वो पूछ रहे हैं भाई रेंट करें या खरीदें, और जो खरीद के बैठी वो कह रही है यार पता नहीं कहाँ पड़ा है, फिट आ नहीं रहा, ये कर रहे हैं, मतलब उस पे. सो जब आप औरतों से इस तरह का कॉन्वर्सेशन करते हैं, ये सब मनी से ही रिलेटेड है ना. खर्चा आपने किया, एक रेंट पे लें, बाय करें महंगी चीजें, बट वो आप थोड़ा फ्लेवर बदल देते हो तो फिर कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती है. अगर आप ऐसे बोरिंग तरह से बोलोगे कि हाँ टेक्निकल ज्यादा चले जाओगे तो फिर थोड़ा रुक जाता है. बट रेंट करें या खरीदें? हाँ आप बताओ. मैं रेंट करो यार, लहंगे महंगे पे क्या खर्चोगे, अपने एसेट्स लगाओ. बोरिंग चीजें करती हूँ मैं, बट मुझे लगता है इतने अच्छे टाइम में है ये जनरेशन. आई विश आई वाज बोर्न इन दिस टाइम, बिकॉज क्या ज्वेलरी वगैरह में कोई दिक्कत नहीं, रेंट करो बढ़िया. आपको लहंगा कोई, हम लोग को तो ये ऑप्शन भी नहीं हमारे माइंड में आता था कि रेंट भी कर सकते हैं. अभी बेस्ट लहंगा रेंट करो यार, निकालो, कोई पहन नहीं रहा है. वरना आई एम टेलिंग, उसको रिफर्बिश कराने के लिए उससे ज्यादा खर्चा कराना पड़ता है. बिल्कुल. मैं गई थी लेके, मैंने इसका करे इतना लग जाएगा, कैसे रख दो इसको वहां पे. डबल बेड के स्टोरेज में डाल दो जिसे खोलना नहीं है. हाँ, इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम टू बी अलाइव, यू नो. दिस जनरेशन हैज इट मेनी थिंग्स. जस्ट लाइक आल्सो यू सेड, मैंने जब पहली इन्वेस्टमेंट करी थी 2005 में, आपने भी अगर करी हो उस टाइम पे 2005 में, आपको एक म्यूचुअल फंड करने के लिए कम से कम 10 कागज साइन करने पड़ते थे. फिर वो कागज जाके डिपॉजिट करवाना पड़ता था. बिल्कुल. ये नहीं कि वो आपका उड़ता हुआ पिजन वो कहीं जाएगा, वो जाके आरटीए में डिपॉजिट होगा, फिर आपका जी अप्रूवल होगा, फिर प्रोसेस चलेगा. हम तब से कर रहे हैं ऐसा, जब खुद ऐसे कागज साइन करते थे. और आज ऐसे टक टक टक
3-4 क्लिक्स बहुत ही ईजी है। देखो बहुत नेगेटिव easy। की भी ईजी है लेकिन पॉजिटिव की बहुत ही ईजी है। इतने सारे एप्लीकेशंस हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल मेरे को एक मेरे फ्रेंड ने एक एप्लीकेशन बताई कि इसमें ना बस अपने पैसे डालते रहे गुल्लक की तरह। गुड लक। तो jar was the Jar, application. हाँ। I started putting Good 50 luck also is an application. Gullak is also an application. I started putting 50 Very nice, रुपए micro investing करा रहे हैं यार। and I have saved thousands और वो मेरे को अलग किक देता, अरे यार 50 रुपए के इतने हो गए, Exactly. मेरे ही पैसे हैं, मेरा ही बैंक है, but it gives me different kind of kick. So ये जो community है, do you do offline meetups as well or not? नहीं, not very regularly. I think upside of being digital first was that we reached out across the country. Downside is because we are across the country, when we have to do something in Delhi, audience बिल्कुल छोटी हो जाती है। So दोनों चीज है, आप डिजिटल जाओगे तो आप सबसे बात कर सकते हो, लेकिन आप ऑफलाइन कनेक्ट्स में हम थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। हम करते हैं, we tried 2-3 catch-ups, we get 20-30 women, but nothing mega. And I have been struggling with this. Like I have been struggling in the sense I have been struggling with this idea that is offline very important? Is it medium important? Is it low importance? Where does it fit? So it's a personal, like we discussed startup में एक journey है, तो I think I'm at that journey where I'm trying to figure out कि online से और width बढ़ानी चाहिए कि अब हमें offline segments बना के depth बढ़ानी चाहिए. It's always and offline is anyways requires a lot of focus. But I think offline भी एक अलग interesting part है, because last Women's Day I was so we have a retainer, a customer. They organized the personal finance session for women on Women's Day. So I think वहाँ पे वो 50-60 women who were working in the company, they gathered, discussed about personal finance. It was such beautiful thing to see them discussing small issues as we discussing about कि यार मैंने पैसे घर पे कैश में रखे हैं, क्या वो सही है या मुझे इसमें डालना चाहिए, उसमें डालना चाहिए. And they were सबसे, अगर मैं एकदम नेचुरल बात बताऊं तो उस दिन सब लोगों को ना ये कंफर्म हो गया कि यार इसके बारे में बात करने में कोई दिक्कत नहीं है कि मैं परेशान हूँ, मुझे नहीं आता और मुझे हेल्प की जरूरत है. आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट टेक अवे. एंड फॉर एनी वुमेन हु इज नॉट स्टार्टिंग, आई थिंक सबसे ज्यादा ना स्टार्ट करने के लिए फ्रिक्शन यही है कि अगर मैं पर्सनल फाइनेंस के क्वेश्चन पूछूंगी तो कोई मुझे कैसे जज करेगा, क्या ये तो इससे तो ये लगेगा कि अरे यार ये कैसे सोच रही है, क्या करना चाहती है, क्या नहीं करना चाहती है, या इसे इतना भी नहीं पता. इज अनदर थिंग जो हम टीचर में जनरली पूछते थे. तो आई थिंक ऑफलाइन में वो डर और खुल जाता है, ऑनलाइन में भी ऑफ कोर्स खुलता है, इट गिव्स यू डेप्थ, बट ऑफलाइन पीपल आर मोर कनेक्टेड, दे कैन कम, दे कैन टॉक टू यू. इट्स अ ग्रेट वे टू नो पीपल पर्सनली एज वेल. ऑनलाइन में भी हम बहुत सारे कॉर्पोरेट सेशंस करते हैं. मोस्ट ऑफ आवर सेशंस आर ओपन chat sessions. I have been doing that now for almost 3 years plus. Offline mein, what I feel, why I see the differences, women learn from women. And that is something which is just not happening. And that is the wow. Correct. Wow ये नहीं है कि मैं जाके उन्हें सिखा रही हूँ. Wow ये होता है जब मेरी ही एक 5 साल पुरानी स्टूडेंट एक 3 साल या 2 साल पुरानी लड़की, यंग लड़की से मिलती है, उसे कहती है तुझे ये करना चाहिए, पता है मैंने किया और इतना मजा आया ना, मेरा अभी इतना पैसा जुड़ गया है. देन जब वो होता है ना उस कमरे में, वो चीज है ऑफलाइन. ऑफलाइन में मेरा कोई काम अलग नहीं है. मैं जितने एक्साइटमेंट से ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ वैसे ही ऑफलाइन भी पढ़ाऊंगी. बिल्कुल. लेकिन जब औरतें एक दूसरे से बात करती हैं और उन्हें लगता है अगर ये कर सकते तो मैं भी कर सकती हूँ, दैट इज वेयर कम्युनिटी चेंजेस थिंग्स वेरी फास्ट. आई थिंक मीनिंग ऑफ कम्युनिटी यही है कि एक दूसरे की हेल्प करना, ना कि देयर शुड बी पर्सन हु इज लीडिंग दैट. सो वी हैव अ कम्युनिटी, आई रन दिस स्टूडियो, वी हैव अ कम्युनिटी ऑफ स्टूडियो ओनर्स internationally, and people discuss small issues. Let's say इस कैमरे से ये कनेक्ट करना हो, वायरलेस माइक तो कैसे होगा, या ये वाली लाइट बेटर है या ये वाली लाइट बेटर है. There was one person who started it from Dubai, but now people from Dubai, Singapore, Philippines, US, Saudi, India, we all are connected in that community and we discuss very small issues. So I think anyone जो नहीं पर्सनल फाइनेंस के बारे में नहीं जानता, I think they should first get into some community, at least feel the taste, what kind of questions people क्या ask. लोग बोल रहे हैं, क्या उसी से आधे तो आपका वहाँ पे बैठे बैठे ही सवाल के जवाब मिल जाएंगे जो आप नहीं पूछ रहे हो. जैसे बचपन में होता था स्कूल में, हमारे सवाल सारे इंटेलिजेंट बच्चा पूछ लेता था, हमारे सवाल क्लियर हो जाते थे. एग्जैक्टली
एग्जैक्टली तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि ये वाली चीज आई थिंक हमें और करनी चाहिए। जो किट्टी पार्टी आपने बोला ना, मेरा सपना है कि मतलब एक दिन वुमनिस्ता की अक्रॉस द कंट्री हो किट्टी पार्टी में, किट्टी में काम का मतलब मजे बात कर रही हूँ, मजेदार तरह से पैसे के बारे में। औरतें जैसे लड़कों को नहीं मजा आता जब वो बैठते हैं साथ में, उनके लिए उतना मजा है। मैं देखती हूँ, मेरा मन करता है मैं उन्हीं से बात कर रही हूँ, इतना मजा आ रहा है इस चीज में। और वो वाली टॉपिक मेरे को लगता है अभी बदलो यार थोड़ा बिल्कुल। बट वो डिफिकल्ट भी है। इट्स लाइक आई सेड, इट्स अ माइंडसेट, इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, इंटरेस्ट। आई हैव टू एडमिट, correct. not all men are interested in money and not all women are interested in money. So that also is a big thing. Yes. And as we are talking about current generation as well, I think हमारा एक special section है जहाँ पे we have a team member who is a Gen Z, और क्योंकि हमने बात की कि अब ease of access है, आपको वो पेपर से नहीं करना पड़ रहा, और knowledge भी है, YouTube, Instagram, you can connect to people, community. So a Gen Z who is curious, who want to start out investing, who has just started earning, they want to understand how should they think about personal finance. So now I'll take a leave from here. Thank you so much for having a conversation with me. Thank you so much. It was a pleasure hosting you and very fun chat. बहुत ही मजा आया बात Same here. Thank you so much. Thank you. I'll invite Sakshi from my team to have this section. Hi, ma'am. Hi. Okay, before starting, while searching your profile, I've gone through many questions, and just to like come here and just prepare questions. While searching questions, I realized maximum questions are my own questions. मतलब ये सब क्वेश्चन के आंसर तो मुझे खुद चाहिए, मेरे पास खुद नहीं है। बेस्ट है like मतलब बहुत small questions जो हम लोग नेट में सर्च करते हैं, and it is related to money of course, but वो I was like kind of like मैं इतनी stupid हूँ क्या कि मुझे सब questions नहीं पता। For मेरा first question would be like कि like we while we see money and we are so much we want to live a life कि जहाँ पे हमें compromises भी नहीं करने, we want to have iPhones, we want to go party, we want to do clubbings, we want to do many stuffs at the same time. Then when the concept come in, like all over the internet is like saving करो, invest करो, saving करो, invest करो, and we are like यार हम कहीं तो गलत जा रहे हैं। तो how would we get confident about कि यार मतलब where there is like lots many flow of information कि right information हमें कहाँ से मिलेगी? That is a basic question. Okay. Right information कहाँ से मिलेगी? I feel information के 2-3 legit sources हैं। सबसे पहले तो pick up a nice book. Okay, बहुत books हैं finance पे। Indian context में है, मोनिका आलन की बहुत अच्छी book है, it's called Let's Talk Money. इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में बहुत बुक्स लिखी गई हैं, बट आपकी जनरेशन को बुक पढ़ने की आदत है अभी, वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी बेटी को मैं देखती हूँ वो तो उसके अंदर तो कुछ सेकंड्स का ही अटेंशन स्पैन बचा है अब, मिनट्स का भी नहीं है। तो आइडियली वो एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। वो नहीं होता है तो सेकेंड स्टार्टिंग पॉइंट इज टू गो टू यूट्यूब वीडियोज। ओके, बट यूट्यूब वीडियोज द ओनली प्रॉब्लम इज इट विल नॉट टेक यू एंड टू एंड, इट विल सॉल्व वन प्रॉब्लम at a time, right? And even that, if you go to some legit advisors के platforms, आप वो देख सकते हो। Third, which I am big fan of, is कि बहुत सारे लोग हैं जो free webinars करते हैं, जैसे हम भी करते थे बहुत सारे free webinars। Attend करो, जहाँ पे लग रहा है you can connect with something, take a course. Invest that little bit of time in picking up a course, be it a self-paced course or a live course, whatever format works. इन तीनों के अलावा there is no other way, unfortunately. It's like अगर आपको ड्राइविंग सीखनी है तो आप कैसे सीखोगे? I'll go for a class course, of course, है ना? या आपको कोई आपका दोस्त सिखा दे, है ना, तो उसमें थोड़ा सा डिगड़ बगड़ करके सीख लोगे। या एक सिंपल रास्ता रखना है तो एक कोच लोगे, उसके पास इक्विपमेंट है, उसको बताना है, उसको उसने बहुत किया हुआ है, उसको पता है क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो चीज आपकी जल्दी हो जाएगी। वही काम जो शायद आप इधर उधर जाके 15-20 दिन लोगे, वो शायद 1 हफ्ते की या 4-5 दिन की क्लास में आप सीख लोगे। राइट। सो क्योंकि फाइनेंस हमें सिखाया नहीं जाता, दिस इज द ओनली वे, आपको ऐसे ही सीखना है। यू हैव टू लर्न इट। बेसिक सीखने ही पड़ेंगे, अदरवाइज तो chaos है ये। So like as I said, we love clubbing, love to do we want that type of lifestyle. So how can that type of lifestyle and finance go hand in hand? कि हम दोनों को explore करें, but we don't want to lose that
charm of that earning कि मैं earn कर रही हूँ but I'm not able to do certain stuff. So I want to earn, I want to live to my fullest, like parties, and you can say celebrating birthday, buying new dress or something which I like. I don't want to restrict myself कि यार नहीं मैं ये नहीं ले सकती. I want to stretch that, and at the same point I want to save also कि मैं future को भी सोच के करूँ. तो वो balance out कैसे होगा? Like that is the thing. तो And we're very मैं आपसे confused पूछती about हूँ एक it. क्वेश्चन, Right. वापस पूछती हूँ Of course. कि आपकी जनरेशन के पास खाने पीने के भी बहुत ऑप्शंस हैं. आप लोग जंक फूड भी खा सकते हो, जोमेटो है कभी भी, है ना, पिज्जा खा सकते हो, सैलेड खा सकते हो. तो कैसे बैलेंस करते हो आप कि आपका वेट भी ना बढ़े और आप हेल्दी भी रहो? We try to like मतलब मैं पर्सनली हाँ, हाँ. once a month I'll try कि मैं once a month I treat myself well कि जब मेरी हाँ. सैलरी आई है तो I'll have something, I'll not do negotiation on कि ये बजट बहुत ज्यादा नहीं, I'll eat to the fullest कि आज मैं नहीं, मैं हेल्थ की बात कर रही हूँ, मनी छोड़ दो एक अच्छा, मिनट. health. हाँ, कि आज पिज्जा खा लिया, बंद किया, हर रोज खाते हो पिज्जा? नहीं, क्यों? है तो Firstly, सही पिज्जा हर रोज खाने के लिए, ऑर्डर कर दो, खा लो. हेल्दी नहीं है firstly. क्यों? तो क्या हो गया? बस क्यों नहीं खाते? वो एक क्या होता mindset है? में है कि वो क्या हेल्दी नहीं, नहीं बट है. क्या होगा? व्हाट विल हैपन अगर आप बहुत पिज्जा खाओगे तो? I'll gain weight एंड व्हाई इज दैट इम्पोर्टेंट कि यू शुड नॉट गेन वेट? so that I look good. Perfect. That's it. You got it. Right. When it comes to your health, you're mindful about your food, Yeah. even when there are 100 options. Right. Correct? Right. Why? Because you have an incentive. You know, if I'm going to eat, I love eating hot chocolate fudge, लेकिन मैं पूरे दिन नहीं खाऊंगी, मैं हर रोज नहीं खाऊंगी. एक दिन खा लिया, अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट पे इंटरमिटेंट करके फिर ऐसे. ये सब करते हैं ना? Right. क्यों करते हो? क्योंकि आपके पास इंसेंटिव है कि अगर विजिबली आई विल पुट ऑन वेट. पैसे के मामले में हमारे पास कोई इंसेंटिव ही नहीं है, क्योंकि वी कैन नॉट सी एज अ 20-year-old that my 50-year-old will thank me that if I save today 5,000 rupees, I will have 1 crore by the time I'm 50. You're 50-year-old, you cannot see or imagine. You have no incentive. Do you have any incentive? You have no incentive. No. Right? Now that incentive comes from two places. One, you have to write down some goals for yourself. And they should be financial goals. I see a lot of young people have no financial goals. They only want what they want today. There is no sort of delayed gratification. Make a nice goal. Okay, you love traveling, right? Why can't you take 2 years to plan a nice Europe 20-day holiday? वो भी एक goal ही है. Yes. It's an exciting goal. It gives you incentive. It gets you in the right habit. If you don't have incentive as a young person, you will never save money. Very simple. Forget about it. We all need incentive. You have to design an incentive for yourself. So, like, what is the percentage that I should save? मतलब there is a अच्छा, मैं आपको बोलूं कि the percentage should be 20%. आप करोगे? नहीं करोगे. So first, that's why I said, the first process is write your goals. I make all young women, I work with many batches of young girls, I make them write their goals. And they're very interesting goals, from starting their business to traveling to see the orcas is what I learned. Then somebody wants to buy a house, somebody wants to set up their own, charity. If you give it thought ना, आपको 10 गोल निकल आएंगे कि मैं क्या क्या करना चाहती हूँ अपनी लाइफ के साथ अगले 5 साल में या अगले 3 साल में. वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है. Just hear me out. I'll come to your, you want formulas, I'll give you formula also. And the second point is, at least 20% of what you earn has to be saved on the day your salary is credited. Simple. और कुछ समझ नहीं आता, 20% को एक दूसरे अकाउंट में शिफ्ट कर दो, जो अकाउंट का ना एटीएम कार्ड होना चाहिए, ना वो किसी यूपीआई से अटैच होना चाहिए, किसी को पता नहीं होना चाहिए उसके बारे में. दैट इज योर सेविंग अकाउंट. वो आपका अपना पर्सनल फ्रीडम फंड है. ठीक है. 20% शिफ्ट कर दिया, उसके बाद दिल खोल के खर्चो. आपकी जनरेशन का एक और वर्ड है जो मैंने सीखा है आपकी जनरेशन से, इट्स कॉल्ड माइंडफुलनेस. द वे वी आर माइंडफुल अबाउट ईटिंग, माइंडफुल अबाउट आवर इमोशंस, वी नीड टू बी माइंडफुल अबाउट आवर स्पेंडिंग एज वेल. Right? So there is no end to want, by the way, not at your generation, not in my generation. Yes. But if we don't have bigger incentives, we will never let go. Now, of if choices. I come to investing, okay, but there are so many things. We want emergency fund also. We want like normal. There are so many names to the funds. Like so, now I'm earning a certain amount. तो मैं इतने सारे funds में कैसे डाल सकती हूँ money? नहीं, वो जो 20% rule आपको मैंने बताया ना, let's say अगर आप
कमा रहे हो महीने का 50,000 रुपए, तो अगर आपका 20% रूल कहता है कि भाई 10,000 रुपए आपको किसी तरह अलग रखना है, सेव ठीक करना है, इसी 10,000 में से बकेटाइजेशन होती है। एक पार्ट जाएगा आपके इमरजेंसी फंड में, दैट इज गोल नंबर 1। क्यों है इमरजेंसी फंड? क्या है इमरजेंसी फंड? ये वो पैसा है जो कल को एक डिग्निफाइड 25 ईयर ओल्ड जिसने पैसे कमा लिए हैं, उसकी जॉब चली गई, जो भी डिग्निफाइड होगा वो मम्मी पापा से पैसे मांगने में थोड़ा सा घबराएगा या घबराएगी, होपफुली, राइट, पता नहीं अभी, बट हो सकता है। तो उन बुरे दिनों के लिए थोड़ा पैसा आप जोड़ के रखते हो, which is ideally 6 times of your monthly expenses. So if you're spending every month say 30,000 rupees, you want to keep aside around 1.8 lakh, 6 multiplied by 30,000, ठीक है, उतना आपको जोड़ना है। बट आपको इमीडिएटली नहीं जोड़ना, आप वही 10,000 में से 2,000 या 3,000 की एलोकेशन स्टार्ट करिए। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा, आप यंग हो, आपके पास प्रॉपर फैमिली बैकिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप वो धीरे धीरे करके भी बिल्ड कर सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ 1 year, कोई दिक्कत नहीं। उसी 10,000 में से एक छोटा अमाउंट जाना चाहिए टुवर्ड्स योर वेल्थ क्रिएशन या योर गोल्स, राइट? सो मैंने आपका थोड़ा सेव करा दिया, 2 से 3,000 आपने इमरजेंसी फंड में रख लिया, बाकी पैसा जो 7,000 है उसमें से थोड़ी सी SIP कर ली, थोड़ी सी FD में डाल दिया। दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट लर्निंग टू बकेटाइज योर सेविंग। सो कोई आपसे ये नहीं कह रहा कि आप वो बाकी पैसे से निकालो ये और वो, जो आप सेव कर रहे हो उसी में से आपको कंपार्टमेंट्स क्रिएट करने हैं। Yes, great. Well, this is a perfect answer. Like I'm just imagining like It's a perfect answer in theory, in practical. Yes, I'm just calculating now. So that means you're going to start doing this from tomorrow. I'll just First you write your goals. I'm telling you, when you write your goal, your life will change from there. Matlab, like while even I want to do whenever I see a motivational speech, I just go to internet like how can I invest or how can I do certain savings, and then I land up with so many information and I land up with so many icons, so many apps. How can we trust them? Firstly, secondly, we are so much confused with money. Matlab, we are so scared of spending them that in a particular thing. So that is spending से तो कोई नहीं, but investing. Spending में कोई डर नहीं है। स्पेंडिंग में ऐप भी नहीं कोई चेक कर रहा है, ऐसे जहाँ बढ़िया लग रहा है प्रोडक्ट वहाँ खर्चने का कोई दिक्कत नहीं, राइट? हाँ। So do you suggest any app or any way of small savings? Okay, so invest. Okay, I'm not sure if I want to name any of the apps, but the larger ones, for example, Zerodha hai, Grow hai. So Zerodha has coin for which you can do mutual funds. I think for one piece of very simple advice which I was reading also, that Gen Z actually is earning lesser than our generation. Inflation adjusted, starting salaries are same. Right. Okay, that's the data. But your generation is apparently saving more than our generation was. And the third very interesting data is they think mutual funds are very boring. They are investing directly more in stocks. Yes. My assumption is it's coming from a place that a lot of these platforms are now available. Right. They are available. They're easy to use. You can use the same platforms. As a beginner, I do recommend starting with a simple equity SIP, not getting very turned on by greed, by get rich quick things, because जितनी जल्दी आप रिच होंगे उतनी जल्दी आप पोर भी हो जाएंगे। तो इफ रिस्क नहीं है, आपका रिस्क एपेटाइट लिमिटेड है, जैसे आपने कहा कि डर लगता है, मतलब रिस्क इज लिमिटेड, तो थोड़ा सेफ इंस्ट्रूमेंट में रखना जरूरी है। FDs करिए, ट्रेडिशनल गोल्ड में SIP करिए, गोल्ड फंड्स हैं उनमें आप SIP कर सकते हैं छोटे अमाउंट की, और एक बेसिक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट कर लीजिए। स्टार्टिंग के लिए वही काफी है, बाकी आप जब करोगे और जब आपको पैसा अपना ग्रो करने दिखेगा, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा कि अब मैं और क्या क्या चीजों में इन्वेस्ट करूं। डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग इज द लास्ट थिंग आई सजेस्ट as a young person who is not investing in educating themselves. Yes, if you are researching, you are educating yourself, you're willing to put the time, then yes, you can take the risk. But अगर वो नहीं हो रहा, टाइम नहीं है, मजा नहीं आता है इन सब चीजों को पढ़ने में, then do a simple thing. Equity SIP करिए जो simple है, straightforward है. So that finance itself is a very huge topic. If I want to like educate myself a bit, not that much, as you have told me, I can save it, but I want to know about certain things, what is going in market and what is happening, the trends and everything. So what is the platforms I can go and get a proper information instead of going to several platforms? ऐसे कोई जगह है जहाँ पे I can get a not straightforward answers, but a bit answer which satisfy me and which is relatable. क्योंकि maximum whenever I go and search, they are like something, they are very hyped कि आप इतना कमा लेंगे, आप इतना सब सेविंग कर लेंगे या ये कीजिएगा, तो they are very negative.
or they are very positive. There's no center way कि मैं अगर invest करती हूँ या I want to study finance as a subject, as particularly for myself and for upcoming the years. So what can be the way I can learn, I can study? And booking, of course, I cannot read a book because firstly, I don't have a time. Secondly, I cannot do that. It's a very difficult task for me. Instagram, I just scroll Instagram reels and I can get information quick. So we as a generation, we need a quick information. That too point to point information. वही तो problem है तुम्हारी generation की. You need the quick information, point to point, personalized. And that also at time. Right, Abhi. So you need basically a personalized financial advisor who is available at the click of a button. As of this point, that product is under development. I'm telling you, many financial institutions will develop a live personalized AI agent who will be addressing your needs very soon. But before that, what you can do is, of course, Womanista is one place where all Gen Z women are most welcome to join and be part of the community. It's free to join. From there, you build a starting point, take a course. We have several courses. I personally also like a platform called Value Research Online. Like I have no otherwise partner. Like I use that, have been using their platform for a very long time. Very legit platform, lot of good information on mutual funds specifically, right? So like I said, that's a product I think is a good starting point. Agar एक platform मुझे बताना है, it would be Value Research Online. Otherwise, there is Money Control as well. Money Control is very busy. Now I find the UI very busy, not user friendly to research. But yeah, these two, which I have also leaned on a lot personally. But my dear, कोई भी subject थोड़ा सा पढ़ने के लिए थोड़ा सा मेहनत डालना पड़ता है. हाँ, and इसका shortcut बता सकती हूँ मैं आपको. अब इसका भी एक एग्जाम्पल है मेरे पास. ऑफ कोर्स है. अगर आपको वर्कआउट करना है तो आप कैसे करते हो? अगर आपको जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करनी है तो आप कैसे करोगे? See, I haven't not done that, but अगर चीज़ में अगर करनी होती तो क्या? I can tell you about belly fat because I am like I do that. हाँ, belly fat क्या बताओ? चलो. Because I'll just research about. कैसे करोगे research? I go to YouTube. What are the basic exercise I can do daily? I just pick only 3 exercise. I'll do that for 3 months. और result नहीं मिल रहा है या confusing लग रहा है तो क्या करोगे? तो I'll just search about food intake, what I take, कि उसमें क्या चीजें हैं जो बाउंड कर रही है. इन सब चीजों में पूरा इंटरेस्ट है. हाँ, इसमें मैं बुक भी दे दूंगी तो पढ़ लोगे, है ना? We are not scared about ना, बचपन से ही हम कर रहे हैं तो उसमें कोई डर नहीं है. बट फाइनेंस थोड़ा मनी रिस्क हो जाता है तो it's a big thing. ये मुझे बताओ क्या है इसमें बिग? अगर तुम्हारी जिंदगी की, मैं सारी औरतों से कहती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी 10,000 रुपए लूज हो गए तो क्या हो गया? क्या हो जाएगा? कोई मारेगा, कोई डंडा पड़ेगा, कुछ स्ट्रेस है घर में, बिल्कुल ही वो माइंड तराही हो जाएगी कि भाई आज की तो क्या है? मतलब व्हाट आई अच्छा, गलत मेकअप का प्रोडक्ट खरीद लेते हो, लगा देते हो, रैशेस हो जाती है तो डर नहीं लगता? लगता है, बट डर्मा के पास जाओ. हाँ, उसमें कोई वो नहीं है ना? गलत एक्सरसाइज कर ली, मसल पुल हो गया, स्ट्रेन लग गया, कुछ उसमें डर नहीं लगता कि टूट गया जी हाथ. दैट इज लाइक वो बहुत पहले से हो रहा है ना मैम. सो वी आर नॉट स्कैर्ड अबाउट इट. जब like it's a mindset, my dear. It's nothing else. It's a mindset, and mindset changes with you, na. And today I'm discussing here. This was just because I'm here. Otherwise, I would at home मैं इतना सोचती ही नहीं कि मैं वही कह रही हूँ. It's a mindset. वो mindset change करना पड़ेगा क्योंकि कोई आपके लिए वो change नहीं करेगा, क्योंकि आपके फैमिलीज में ये नॉर्मल चलते आ रहा है. वो माइंडसेट आपको ब्रेक करना है. अगर आपको अगली जनरेशन के लिए ब्रेक, बिल्कुल इट इज अ माइंडसेट. मैं तो हैरान होती हूँ, औरतें इतनी भयंकर डरावनी रिस्क वाली चीजें कर लेती हैं, बिना जाने एक आदमी से शादी कर लेती हैं, बच्चे पैदा कर देती हैं और उनको उसमें नहीं डर लगता, और 10,000 रुपए के लॉस में उनकी जान निकल जाती है कि ओ गॉड से मेरा बड़ा लॉस. क्या हो गया तुमने 10,000? क्या हो गया? कुछ नहीं होता है. इट्स अ माइंडसेट. और दूसरी चीज, अगर इतना डर लगता है ना, गेट योरसेल्फ एन एडवाइजर. अगर वर्कआउट नहीं आता ठीक से करना है तो इंस्ट्रक्टर रखते हो ना. राइट. यस. सो व्हाई आर पीपल स्कैर्ड ऑफ टॉकिंग टू एन एडवाइजर? मुझे ये भी नहीं समझ आता. व्हाई डोंट women work with advisors? It's easy. You for if you have mental health issues, you go to a therapist. But trusting someone with money, it's like even that is a question. Agreed. And therefore, which is why I said that this is the easiest industry because it's regulated. You start with somebody who is certified. I'm thinking as a not Gen Z, but as a person, मैं किसी से बात नहीं करूंगी about my finance.
because firstly I wouldn't have that particular trust why, and I'm The trust is, my dear, the trust is you don't have trust on yourself. The day you have trust on yourself, you will stop having this fear of talking about it to someone else. That's what it is. yes, we can say that. It is. It's always that. Okay, but I have taken my first step. You have by talking to me. about it. Yes. Yes, so it was great. Like, बस talking और to क्वेश्चन नहीं थे आपने So लिस्ट all- खत्म कर दी नहीं, so all the questions are like वो सब cover हो गए. आपने नहीं मुझे थोड़ा आपने specific बहुत बता सारे दिया. क्वेश्चंस So I have like 19 questions. तो वो 19 सारे questions. covered हो चुके हैं with everything. डर गए That मेरे may- से No. मैंने डरा दिया जेंजी को No. इसलिए नहीं आ रहे जेंजी मुझसे बात करने मैं डरा जा रही हूँ उन सबको नहीं आप जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देते रहे like नहीं होना चाहिए ना straight वी आर forward. लाइक वी आर नॉट एबल टू सर्कुलेट कि अब क्या पूछे यार सब कुछ बता दिया. जलेबी नहीं बना रही बट आई टेल यू वन थिंग दैट बहुत अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है पैसे की कि जब हमें उसे जोड़ना चाहिए तब हम उसे खर्चने में बिजी होते हैं और जब हमें लगता है कि शिट यार जोड़ लिए होते तब लेट हो जाता तो हमारे पास बहुत सारे 40-year-olds आते हैं जो कहते हैं कि काश आप मुझे तब मिले होते जब मैं 25 की थी और मैं उन्हें कहती हूँ कि जब मैं आपको मिली होती 25 पे तो आप मेरी बात नहीं मानते यही अनफॉर्चुनेट रियलिटी है मनी की बहुत कम ही ऐसे यंग लोग हैं जो एक्चुअली थ्योरी में और प्रैक्टिस में वो चीज इम्प्लीमेंट कर पाते हैं राइट एंड आई हैव नोटिस दैट इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ ड्रीम समथिंग व्हिच मेक्स मी फील I need to restrict my today because my tomorrow will look better. And that dream will not be retirement. It's too far. For a 25-year-old, retirement sochna is like thinking about but it's like they laugh at me when I say so. I don't talk about retirement only. But what you can see is maybe 2 years, 3 years. So एक goal बनाओ और इतना मजेदार गोल होना चाहिए कि मेरे पास जैसे I'll give you a small example आपको शायद मोटिवेट करेगा मैं बी स्कूल की लड़कियों को पढ़ाती हूँ. So they are typically in the age group of 21 to 24. And I did an exercise. I told them all कि आप 30 की एज में आपके पास कितना वेल्थ होगा ना शादी करने से पहले क्योंकि एक ये लड़कियों का है कि शादी इज अ वेरी बिग थिंग राइट सो मैंने कहा शादी करने से पहले एक नंबर लिखो कि जब तुम जाओगी जिस भी लड़के के साथ शादी करने तो तुम्हारे पास एक नेटवर्थ एक अमाउंट की तुम्हारी होनी चाहिए राइट इससे पहले कि तुम उसकी पूछो कि तुम्हारी क्या नेटवर्थ है तुम्हारे पास क्या होगा तो राइट दैट नंबर. And interestingly, a few days back, I met the one of the girls I was talking to from a corporate perspective. She was my student, and she told me that almost 4 years back, she said she remembered. She said you had made us do this exercise. I want to tell you, I'm going to turn 30 in a few days, and I have beaten that number. And thanks to you, I have been able to invest. And आज मैं उस net worth से भी ऊपर हूँ. Okay. So if you ask me, power is in your hands. What you want to achieve, make a goal. एक नंबर लिखो कि 5 साल बाद मेरे पास 1 करोड़ होने चाहिए. जब तक आपके पास वो ड्रीम नहीं होगा ना आपके पास कोई इंसेंटिव नहीं है फिर तो नाइका सेल पिंक लव रेड ब्लू क्या है ब्लू वेंसडे ब्लैक संडे पर्पल फ्राइडे क्लब्स कोई कमी नहीं है. पॉप स्टार्स क्यों कमी है क्या हमारी जनरेशन के कोई कमी नहीं है. हाँ नहीं हाँ of course but खर्चे के तो कोई एंड नहीं है. we are like ना we want to live to the fullest. We all do not just you. We all want to live to the fullest. Yes, we can say that. Unfortunately, you have been born into a generation with so many choices. Right. We didn't have choices. तो हमारे सपने इतने छोटे थे कि हमने वो अचीव कर लिए तो अब हमें समझ नहीं आ रहा कि अभी और करना है क्या है. वही फर्क है बस. Yes, ma'am. That was great. Like now, Sakshi like आप जाओ. no. I'm like 5 मिनट और आपसे साथ. Almost doubts are clear and I'm like कि हो गए तो clear, मैं आज ही सबसे पहले गोल लिखूंगी बैठ के. हाँ यार कैलकुलेटिंग सिंपल रहता है. तुम्हारी जनरेशन तो बहुत स्मार्ट है यार. बाकी सब माइंडफुलनेस में कितने आ गए तुम. इमोशनल क्या है वो कनेक्टिविटी इमोशनल अटैचमेंट इमोशनल एवोल्यूशन तुम्हारी इतनी हाई है कि कब हमारे साथ टॉक्सिक एनवायरनमेंट. हमें तो टॉक्सिक वर्ड ही नहीं पता था यार. डिप्रेशन टॉक्सिक वर्ड हमें कुछ पता ही नहीं था. सब तो सीख लेते हैं यूट्यूब से. ये भी सीख ही लो. प्रोसेस लेट होप कि हम सीख रहे हैं. बट दिस वाज अ ग्रेट सेशन. मतलब बिल्कुल अब आपने मुझे रोस्ट कर दिया. बिल्कुल फुल रोस्ट कर दिया. फुल रोस्ट